Very well, people. So, good morning for the third time. But anyway, it was okay. No problem with that. Let's begin. Okay, already some time lost. We are entering the domain of predictive algorithm. That's where a little bit of geometry will come in. Geometry, geometry, the two-dimensional geometry. Is there anybody there who has started to having cold feet already? It happens. Geometry has that impact. Yes, I could, I could see that. Okay, I don't know if some of you were in the extra session I conducted. I mean, that was one masterclass kind of thing. I use the nitty-gritty of this kind of exercise here. Say where does prediction comes in? Where does prediction comes in? Just like your cast data set, which you were dealing throughout the last week. Yes, there was a data set, there was a variable of interest, and you want to find out some key factors, how they are impacting. But think about it, if you can make it out that these are the parameters which impact it, and you can come to terms with a function, a mathematical function that this impacts this variable to this degree. Won't you be able to predict things like this? I mean, let's not go into technical. I'm giving you the basic idea, very crude idea. But I want you to get the best. What is the idea behind what we are actually trying to do? For example, for example, let's say there is this data set on your screen. So don't worry about the data set. We are not doing anything with this data. So that is just a dummy data. Very initial example. In the starting, we talked about this. There is a company who is manufacturing some product. They are marketing their product, advertisement, this and that on channels, FM, newspaper, hoardings, whatsoever. And then they are recording their sales also. That, okay, this is the sales we have made. They are recording this data every month. So what do you think? After a certain time, this is a data in itself. Yes or no? Yes or no? Where are you people today? Okay, fine. Please, let's keep discussing. Okay. Now what we are trying to do is that we are trying to prediction. We'll do it this way. Think about it. If I create a geometry, what is geometry? X-axis and Y-axis. That's all about geometry. That's all geometry is. You see the two axes, and they have created all the turmoil in the world. In this case, what we are trying to predict is the sales. What my question to you is, if I know that next month, okay, what is the budget we want to take, okay, that company already knows. Yes or no? वो तो मेरे को पता रहेगा. बजट कितना रखना है वो तो मैं बताऊंगा ना.
Suppose I want to decide, say, budget would be 250. Maybe I'm deciding. The problem is, can I predict buy something that what is going to be the sale if I keep this budget with a certain sense of accuracy, with a particular level of accuracy, acceptable level. You got the idea? What we are trying to do? Now, by convention, what we used to do is we keep budget on x-axis. These are called target variables. The variable of my interest, it is called target, and the variable on basis of which I am predicting, it is called predictor. We call it predictor or independent variable. So there are several terminologies. It is predictor and target. This is also the way we call it dependent also. That this is dependent and this is independent. So this is also a way we call it. Fair. So we are trying to predict target variable with the help of predictor variable. So predictor will be on x-axis, target is always on y-axis. So this is general convention. Seems good. So far so good. Now think about it. In this scenario, now all these points will become x1, y1. Yes or no? Since this is x-axis now and this is y-axis now, so all these points for each month, this data will become what? A point. This is a point 1, which is equal to what are the coordinates? X1 and y1. This is point 2. What are the coordinates? X2 and y2, and so on. Right? Correct? All have become geometric coordinates. तो कैसे लगेंगे ये geometry? I'm showing you an illustration. ऐसे लगेंगे ये. Now what is my job is? What is our job? What is our idea? If I can find y is equal to as a function of x. Let's not worry about function for now. I'm saying just pay attention to what I'm saying. If I can find y is function of x in some way, whatever function, say y is, I'm saying, I'm making a, illogical thing, but think about it. I'm saying y is, I can find this out somehow, that natural log of sine of x. If I can find this something out, काम हो चला. अरे काम हो गया. अगले महीने x क्या होगा, बजट, वो तो मुझे पता है. वो तो मार्केटिंग हेड बताएंगे. मेरा काम क्या रहेगा, ये कैलकुलेट करके y बताना है. ये सेल्स इतना होगा. सही बात है. बताते रहो मेरे को. अगर one more thing, just pay attention to this, get this right. This is essentially what we are talking about as a regression analysis, and you will realize it very soon that regression ही जान है. This is the mother algorithm. बाकी सब यहीं से निकले. All others are extension of this. So if you get this right, बाकी सब आसान हो जाएगा काम. चलो. So
मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ देखता अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ देख रहा होता दैट दिस इज y, दिस इज x, और ये पॉइंट्स कैसे आ रहे होते, ऐसे आ रहे होते। ये पॉइंट्स कुछ ऐसे आ रहे होते। हाँ जी, क्या करना था मेरे को? अरे क्या समझ में आ रहा है इससे? मुझे क्या पता करना था? y इन टर्म्स ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो हाँ, यस एग्जैक्टली, बड़ा बढ़िया समझ आ रहा है फंक्शन दैट y इज साइन ऑफ x। maybe I have to multiply it by a constant, that is another thing, maybe I have to multiply it by a magnitude, but it is sine, sine तो है। Now who is not getting this sine function, that this is kind of sine function? Please tell me so that I know, guys. Those who cannot make it out that this is sine function and what is sine function on geometry. Sine function, not getting, not getting. Very fantastic. You don't know that this is geometry for sine function. Sine function goes like that. Okay, okay, very good. In fact, I wanted you to struggle here. जिनको समझ आ गया, तुमने कौन सा तीर मारा? आओ देखते हैं। अभी जो मैं तुम्हें स्कैटर प्लॉट दिखा रहा हूँ, तुम कह रहे हो चलो समझ आ गया, साइन फंक्शन था। हाँ, होता होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली पता कैसा आएगा? कैसा आएगा? वैसे ही जैसा आया था। ये रहा। My scatter plot is this. अगर if I am to plot some function, this it is something this, and so on. So what is the equation of this function? Y is equal to this what function of x? Getting the problem right. I am trying to get an exact function which fits all the data points. Now this is a very random scatter. और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फॉर दिस स्कैटर, फॉर दिस पर्टिकुलर स्कैटर, अगर मैंने कोई फंक्शन पता कर भी लिया, अगर गलती से कोई फंक्शन मैंने पता कर भी लिया, तो कल को स्कैटर चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा? अगले महीने फिर कुछ डेटा आएगा, अब कुछ और नया फंक्शन ढूंढ लो। आई होप यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम। अभी उससे मत डरना जो साइन वाली बात कर रहा था, मैं बस जस्ट जानना चाह रहा था कि स्थिति क्या है। डरने की जरूरत नहीं है उससे। So exact fit is not possible. So then we decide what? Let's generalize things. And how do we generalize things? Let's not stick to a particular function. Let's draw a straight line which represents this scatter best. Got the idea? We are not trying to exactly fit all the data points. We are trying to find out a best fit line which represents the trend. What has been the trend? तो इससे क्या होगा कि ठीक है एग्जैक्ट फिट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत एरर आएगा एक्चुअल से थोड़ा बहुत एरर आएगा, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। वो क्या प्रॉब्लम था? बड़ा प्रॉब्लम क्या था? आपको फंक्शन नहीं पता था, अब आपको फंक्शन पता है। दैट y is in some form
mx plus c. ये तो पता होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी का? So now I am getting y in terms of x. Now I know the function also. It is a straight line. स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन mx plus c होता है. तो ये m और c कहाँ से मिलेंगे उसकी चिंता अभी नहीं करती, वो तो मेरा मशीन करेगा, इसीलिए मशीन लर्निंग है ये. बट अब कुछ क्लैरिटी, बाकी लोग जो साइन वेव से घबरा गए थे, ये ठीक है, अभी ये समझ आता है. ठीक है, थोड़ा बहुत एरर रहेगा तो वो तो हम मान के चल रहे थे, थोड़ा बहुत एरर होगा. दिस इज मैथ्स, दिस इज नॉट मैजिक, तो एरर तो होगा थोड़ा बहुत, तो दैट इज एक्सेप्टेबल. ओके, वेरी फाइन. हाँ जी, अगर ऐसा हो जाए तो अब प्रेडिक्शन हो जाएगा, अब प्रेडिक्शन हो जाएगा. सपोज ये मैंने हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स का ट्रेंड देखा और उस ट्रेंड के हिसाब से जो लाइन इस ट्रेंड को बेस्ट फिट करती हो वो लाइन मैंने डेवलप कर ली. आई गॉट द इक्वेशन दैट दिस लाइन इज mx प्लस सी. और ये लाइन अगर ज्योमेट्री पे दिख रही हो तो ऐसे जा रही होगी जैसे ब्लैक लाइन जा रही है. तो प्रेडिक्शन कैसे हो जाएगा आगे से? सपोज नेक्स्ट मंथ मेरे को रखना है बजट 200, तो 200 रख दूंगे यहाँ पे, एम और सी पता होंगे, वाई कैलकुलेट होगा. अगर ज्योमेट्री पे दिखाऊं तो शायद ऐसा हो रहा होगा कुछ. देखो 200 रखा बजट, तो ये लाइन को कहाँ कट करेगा? लेट्स सी, सेल्स कैलकुलेट करके देखें, शायद यहाँ पर. तो सेल्स इज अ बिट लेस देन 15 crores. आई आई होप ये तो क्लियर होगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन है? क्लियर? ओके. एम एक्स प्लस सी, एम और सी क्या होते हैं बताएंगे कोई? देर आर सम टेक्निकल टर्म्स फॉर दैट, सो यू शुड नो दैट. पता होने चाहिए, मतलब भी समझ आना चाहिए. अच्छा जी, एम इज स्लो, सी इज कांस्टेंट. अच्छा, ओके. देन व्हाट इज स्लो एंड व्हाट इज कांस्टेंट? प्रैक्टिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं. अभी वो स्कूल वाला तरीका छोड़ दो, उसकी बात करते हैं कि हाँ अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम दे रखी है तो उसमें क्या समझूं मैं इस बात से. लेट्स से, हाँ जी, फंक्शन का काम तो खत्म हुआ. फंक्शन इज एम एक्स प्लस सी. अब बात आई कि एम क्या है और सी क्या है. आप ही लोग बता रहे हो, मुझे नहीं पता. एम कह रहे हो स्लोप होता है, सी कह रहे हो आप कांस्टेंट होता है, या इसके लिए भी टेक्निकल टर्म है, इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. नाउ व्हाट डज इट मीन? स्लोप किस चीज को बोल रहे हैं? स्लोप आई एम टेलिंग दैट इफ अगर मेरा मार्केटिंग बजट 1 यूनिट से चेंज हो तो वाई में कितना चेंज आएगा, मेरे सेल्स में कितना चेंज आएगा, उसी को स्लोप बोलो. राइट, गॉट इट. हाँ, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ है, वो भी नहीं कह रहे. आई एम रिपीटिंग,
slope means the extent of change in y if 1 unit is changed in x, per unit change in x. यानी मैंने मार्केटिंग बजट अगर 1 लाख रुपए से घटाया या बढ़ाया तो उससे y पे कितना चेंज आएगा, उसी को स्लोप बोलते हैं। सेल्स पे कितना इम्पैक्ट। ठीक है जी, यही बात हुई। ये जो हम लाइन देख रहे थे, मार्केटिंग बजट यहाँ से यहाँ ले गया तो ये सेल्स पे कितना इम्पैक्ट आया, ये चेंज कितना होगा, ये कितना होगा उतना ही होगा जितना स्लोप होगा। एक बात क्लियर हो। इंटरसेप्ट क्या होता है? प्रैक्टिकली बात करूं तो इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है y की वो वैल्यू अगर x 0 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। गॉट दिस ऑल्सो? एग्जाम्पल, अपनी एग्जाम्पल से बात करें। हमारे सीईओ साहब क्या कह रहे हैं कि अगले महीने मेरे पास पैसे नहीं है, मार्केटिंग कहाँ से करूँ, तो बजट इज 0। थिंक अबाउट इट, इफ दिस कंपनी सैमसंग और डेल और समवन, अगले महीने अगर वो बजट 0 कर दें, एक पैसा खर्च नहीं करें मार्केटिंग पर, फिर भी कुछ सेल्स हो जाएगी? यस और नो? कोई ना कोई पहुंच जाएगा ना सैमसंग का फोन लेने, अगर अगले महीने वो बिल्कुल कोई मार्केटिंग नहीं करते। अरे बोलोगे what has happened, sleepy in the morning, or maybe it is not very happening example. Okay, fine. तो इसी को एक illustration और दिखा रहा हूँ आप लोगों को, just pay attention, maybe it will make sense now. स्लोप क्या है, हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं इस लाइन को? डेटा साइंस के टर्म्स में हम इसको mx+c नहीं बोलते, we talk in terms of betas. The intercept is beta naught and the slope is beta 1. So what is slope? This is slope. If there is 1 unit change in this budget, how much change in sales? यहाँ कितना change हो रहा है? So that is beta 1 slope that you already know. And what is beta naught? Beta naught is, where did it go? Beta naught was this thing. If I extend this line so that x becomes 0, so when x is 0, what is the value of y? That is beta naught, the intercept. Got this idea? तो mx plus c, that is जनरल इक्वेशन। डेटा साइंस में बीटा 1 बीटा नॉट भी दिखा मिल सकता है, मतलब कुछ नहीं है सर, जस्ट किसी ने स्मार्ट दिखने के लिए उनको ऐसे ही चेंज कर दिया। मैं mx plus c नहीं बोलूंगा, मैं बीटा नॉट बीटा 1 बोलूंगा, है ना। मैं शेड्यूल नहीं बोलूंगा, मैं स्केड्यूल बोलूंगा। तो ठीक है, चल रहा है, चलने दो। But important concept is to understand this slope and intercept side. So I hope you people get it. Coming to more important question. Okay, I show you an illustration again. Maybe you will get the question. What I am going to ask. हाँ जी, क्वेश्चन समझा, आंसर के बारे में बताओगे। क्वेश्चन समझा?
कवि कहना चाहता है कि बेस्ट फिट लाइन कौन सी है? किसको बोलूं कि ये बेस्ट फिट लाइन? स्कैटर तो मिल गया, लाइन भी चलो समझ आती है। स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होंगे वो तो मशीन बताएगा, लेकिन कैसे बताएगा? किसको माने वो बेस्ट फिट लाइन है? ये जानी तीन तीन तो तुम्हें दिख रही हैं, और दिखाऊं? और भी जा रही होंगी, देखो एक ये जा रही, मे भी एक ये जा रही है, और भी जा रही होंगी। So there has to be some criteria to decide which one should be the best fit line. Criteria number one. Okay, here it comes. Shweta has dropped it. Fantastic. It should pass through maximum data points. They are very logical thing. जो लाइन सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट्स को पास कर रही हो वही मेरी बेस्ट फिट लाइन है कि नहीं? सही कह रही हो? और किसी को कुछ कहना? चलो एक और चीज दिखाता हूँ फिर, ऐसी बात है तो। Here is an illustration. देख पा रहे हो? मेरा स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा है। श्वेता और रुशील आपके लॉजिक के हिसाब से देखो देखो देखो, ये होनी चाहिए बेस्ट फिट लाइन, क्योंकि सबसे ज्यादा 500 तो ये जा रही है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई दिस वाई दैट शुड बी मिनिमम। अरे कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हो यार? ये कॉपी पेस्ट करके मत फेंको मेरी तरफ, जो समझ आ रहा है वो बताओ ना। श्वेता, सुशील, मे भी और बाकी जो भी जिनको लग रहा था, बात तो बड़ी लॉजिकल है, लेकिन देख रहे हो प्रॉब्लम क्या है इसकी? इस क्राइटेरिया की फेल हो सकता है ऐसे केसेस, जैसा मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो लेट्स कम टू अनदर क्राइटेरिया। यस, दूसरा क्राइटेरिया मैं क्या कह रहा हूँ, बेस्ट फिट लाइन का क्राइटेरिया अगर कुछ ऐसा हो दैट रादर देन पासिंग थ्रू मैक्सिमम लाइन, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, पास कितने भी पॉइंट से हो रही हो नहीं हो रही हो, मैं ऐसे बेस्ट फिट लाइन उसे बोलना चाहता हूँ जो एरर सबसे कम कर रही है। एरर सबसे कम, यार किसकी एरर सबसे कम होगी? ये हम सेल्स प्रेडिक्ट कर रहे थे। मैंने लाइन फिट की है, रेड वाली मान लो, डेटा पॉइंट था ये, यानी एक्चुअली सेल्स तो ये थी। मेरे लाइन ने कितनी बनाई है सेम बजट पे? सेम एक्स के लिए मेरे लाइन कितनी बता रहा है? इतनी बता रहा है। सो एक्चुअल इज दिस, प्रिडिक्शन इज दिस। ये हो गई एरर। तो मैं दूसरा क्राइटेरिया कह रहा हूँ, मेरी बेस्ट फिट लाइन वो होनी चाहिए तो एरर सबसे कम करनी है, जिसकी टोटल एरर सबसे कम। अगर मैं इस पॉइंट से भी देख लूँ, इस पॉइंट से भी देख लूँ, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, सबसे देख लूँ, हो सकता है वो एक भी पॉइंट से एग्जैक्टली पास थ्रू ना कर रही हो, लेकिन एरर ओवरऑल सबसे कम कर रही है। Seems like a good idea. What do you have to say? Ajinkya, no. What do, what do you, okay, we will worry about that later. But for now, you got the idea. Error minimum होनी चाहिए। वो भी देखते हैं, पता कैसे चले, देखते हैं।
लेकिन गेट दिस ऑल्सो राइट, मैनुअली करना ना तो प्रैक्टिकली फिजिबल है ना पॉसिबल है, करेगा तो मशीन ही। आपको ये पता होना चाहिए कि कर क्या रहा है, व्हाट इज द कैलकुलेशन बिहाइंड द स्क्रीन गोइंग। एरर कैसे पता चलेगा, चलो देखते हैं एरर कैसे पता चलेगा। चेक दिस इलस्ट्रेशन, ये लाइन जा रही है x इज इक्वल टू 2 पे, ये लाइन बता रही है कितना, ये 4-5 पॉइंट हैं, इनको बेस्ट फिट करती हुई एक लाइन जा रही है। इस पॉइंट का तो देख रहे हैं हम, एक्चुअल वैल्यू इस पॉइंट की थी 7, x इज इक्वल टू 2 पे। प्रेडिक्टेड, हमने प्रेडिक्शन किया हमारी लाइन ने, वही जो करती है हमारी लाइन, उसने प्रेडिक्शन बताया 4, तो एरर कितना हो गया, डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस। अरे 4 कैसे हो गया, देख लो। ठीक है, तो ऐसा करके तो एरर कैलकुलेट होगा। y की वैल्यू 4 है, हाँ, तो प्रेडिक्टेड y इज 4, एक्चुअल y was 7। अब प्रॉब्लम क्या होगा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वही जो किसने बोला था, शायद अजिंक्य। ये एक्चुअल वैल्यू अभी ऊपर थी, प्रेडिक्टर नीचे था, तो एरर कितना आया, 3। कहीं कहीं ये नीचे होगा, एक्चुअल नीचे है, प्रेडिक्टेड ऊपर है। अब ये एरर कितना आया, कितना आया ये एरर, देख लो, दिख रहा है 6 और 4, तो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टर। एरर, एरर क्या होती है, एरर क्या होती है, एक्चुअली जो हुआ था उसमें से हमने इतना तो प्रेडिक्ट कर लिया, जो पार्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाया वही मेरा एरर है, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो इस बार एरर आया -2। नाउ थिंक अबाउट इट, कैन आई ऐड एरर लाइक दिस, दैट दिस 3 प्लस दिस -2 प्लस, मैं कह रहा हूँ मुझे ये प्लस माइनस का झगड़ा नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ स्क्वायर कर दो इसको, सो दैट इट इज अ साइनलेस एंटिटी, इट शुड नॉट हैव एनी प्लस और माइनस। यहाँ पे भी ठीक हुआ, स्क्वायर कर लेना चाहिए ना। Absolute value, I am not getting absolute value. Sometimes my prediction is more than the actual value, sometimes my prediction is less than the actual value. राइट, तो हमने सारे पॉइंट से एरर ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया, तो कैसे हो रहा होगा, सारे पॉइंट से कैलकुलेट कर लिया और सारे पॉइंट से स्क्वायर कर लिया। Can you calculate that in this case? There it is. Just see the illustration and calculate. I want you to square by yourself, okay? Tell me what do you get. Well, by the way, these errors are called residual, residue, रेसिड्यू यानी जो छूट गया, केमिस्ट्री लैब में पढ़ा होगा, याद होगा, रेसिड्यू नाम की चीज होती थी वो, रिमेम्बर।
होता था वो जो केमिकल रिएक्शन के बाद कचरा रह गया नीचे टेस्ट ट्यूब में, प्लास्टिक। कैसे कर रहे हो? आई डोंट नो, पता नहीं क्या कर रहे हो। दिस दिस इज एक्चुअल माइनस दिस प्रिडिक्शन, इसका स्क्वायर कर लिया, फिर दिस माइनस इनका डिफरेंस और इसका स्क्वायर, फिर इनका डिफरेंस और स्क्वायर, प्लस दिस डिफरेंस एंड दैट स्क्वायर। ये करना है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ऐसे ही है क्या? सही कह रहे हो क्या? दिस इज 0.5 स्क्वायर प्लस दिस इज 3 स्क्वायर, this is 1 square, okay, that is as good as 1. This is 2 square, and this is again 1 square, and we have to sum it up all. कितना हो गया? गलत कर लिया रुचि, स्क्वायर करना है, हर एरर टर्म का स्क्वायर करना है। ये एरर टर्म लिया, इसका स्क्वायर, ये एरर टर्म लिया, इसका स्क्वायर। पहले सबको तुमने टोटल कर लिया, फिर उसका स्क्वायर करो, वो गलत है। So it is 0.25, it is 9, 10, 14, 15, 15.25. So Bishop, Varun, Paul, it's okay. Shweta, Anand, most of you are getting it right. What about others? Getting it? Struggling? What's going on? इसी टर्म को हम बोलते हैं, the same term is called SSR. SSR, or maybe you will read it RSS. This is also popular acronym for this. What we have done? Sum of the square of residuals. देख लो, यही तो किया है। लिख रहे हैं SSR, चलेंगे उल्टा काम करते हुए। सबसे पहले तो रेसिडुअल देख लो। रेसिडुअल इज 0.5, ओके। 0.5 हो या -0.5 हो, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब स्क्वायर कर लिया, और जब स्क्वायर कर लिया तो स्क्वायर को हमने सबको सम कर दिया, उस टर्म को हमने बोला SSR। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स और रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ क्लियर हुआ। हम इसके पास क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें बेस्ट फिट लाइन का क्राइटेरिया डिसाइड करना था। तो अब मैं कह रहा हूँ, आई होप दैट वी मेक सेंस नाउ। नाउ आई एम मेकिंग द स्टेटमेंट, बेस्ट फिट लाइन वो होगी जिसका SSR मिनिमम। अरे है कि नहीं? देखो देखो, 3 लाइन ऑलरेडी जा रही हैं, 2-4 मैं बना देता हूँ, कहो तो। ये भी है, वो भी है, इनफाइनाइट लाइन्स, देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स। मैं कह रहा हूँ बेस्ट फिट लाइन वो होगी जिसका SSR मिनिमम होगा। बढ़िया। सो नाउ मिनिमम कैसे होगा? एंड दैट इज समथिंग यू मस्ट हैव
वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डीप बिकॉज वो मैनुअली होता भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन सुना होगा ना। फर्स्ट डिफरेंशिएशन पे मिनिमम मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। सेकंड डिफरेंशिएशन पे कंफर्मेशन होता है उसका कि मिनिमम था कि मैक्सिमम। इट इज अ बिट डीप मैथमेटिक्स। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू कॉन्सेप्ट क्या होता है। ज़्यादा कूदने की जरूरत नहीं है उसका, बिकॉज वो जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। बढ़िया। सांस लेना है, ब्रेक करें, ये चलता रहूं। हैवी तो नहीं हुआ था। मेरा ब्रेक। ओके ओके ओके, वेरी फाइन देयर। So it is 9:38 by my clock. So you can resume it. Resume by what? 9:45? That will do. Okay. Take a break of 5-6 minutes. Take a stroll. I'll see you there. Just please return back on time. Very well, guys. Good to see everybody is back on time. अच्छा जी, क्या बात कर रहा है भारत? ये ना इतने इतने नौटंकी मत किया करो, तो मेरे साथ रो दूंगा मैं। देखिए। चल ठीक है। Okay, let's continue. So you got the idea of SSR? Yeah, RSS, whatever you want to call. So this is another illustration. This is the way it goes like we calculated the error term, the residual first. So that is yi, that means actual value, ith point, ith data point. And then we square it and then we add all the error terms. So this is also called ordinary least square method, OLS. आप LMS पे देखोगे तो OLS लिखा होगा, डर मत जाना उसे देख के। कभी कभी क्या होता है ना, मैं भूल जाता हूँ मैं बताना कि OLS यही होता है, और बाद में मेरे को कॉल आते हैं कि OLS क्या होता है, ये पढ़ाया नहीं आता। यही होता है। नाउ व्हाट इज द इंटेंशन? टू मिनिमाइज दिस। यस, यही बात हुई थी हमारी, मिनिमाइज करना है इसको। ठीक है, तो दैट इज रेसिडुअल सम ऑफ द स्क्वायर, SSR और RSS, एंड वी इंटेंड टू मिनिमाइज इट। जिसके लिए मिनिमम होगा वही मेरी बेस्ट फिट लाइन होगा। वो मिनिमाइज कैसे होगा, एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। देयर इट इज। लेकिन आपको शायद वो भी समझ आएगा मैं क्यों कह रहा था कि मैनुअली पॉसिबल नहीं होता है। मैं एरर टर्म को अगर इस फॉर्म में लिख लूँ, कैसे लिख लूँ? y1, y1 यानी एक्चुअल डेटा पॉइंट, एक्चुअल सेल्स वैल्यू।
पहले मंथ की, फिर दूसरे मंथ की, फिर तीसरे मंथ की, एंड अप टू एन स्टार। माइनस वाई प्रेड क्या था? हाँ जी, प्रिडिक्शन कहाँ से आ रहा था? प्रिडिक्शन के लिए हमने लीनियर इक्वेशन डेवलप किया था ना, विच वाज y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ith वैल्यू, ऐसा ही था। तो इसको ये भी बोल सकता हूँ, वही वैल्यू रख रहा हूँ एक्स के टर्म्स में। और अब अगर इस स्क्वायर को ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, what it amounts to a square plus b square minus 2ac. Remember that? You recall that? अरे ये तो पढ़ाई होगा ना, ये तो पता होगा, ये तो बचपन में पढ़ा था। है कि नहीं? ये क्या होता है? हाँ, जो भी होता है, लेकिन मैनुअली करना नहीं है हमने। नाउ थिंक अबाउट इट, दिस इज एसएसआर। अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूँ एसएसआर को विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन मिलता है। और डबल डिफरेंशिएशन पे क्या मिलता है? डबल डिफरेंशिएशन पे क्या मिलता है? एक्सट्रीम, मैक्सिमा और मिनिमा, राइट? और वही हमारी इच्छा थी, मिनिमाइज करने की। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन पे मेरे को बीटा वन नॉट की वैल्यू मिलती है, सेकंड डिफरेंशिएशन पे बीटा वन की वैल्यू मिलती है, और इस तरह से वो लाइन डेवलप होती है। इस तरह से मुझे पता चलता है कि मिनिमम वैल्यू जब एसएसआर की आ रही होगी तो वो लाइन कौन सी होगी, उसके लिए बीटा वन और बीटा नॉट क्या होंगे। मैनुअली पॉसिबल क्यों नहीं है? मैनुअली इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर डूइंग दिस फॉर ईच डेटा पॉइंट। दिस इज वन, दिस इज टू, एंड दिस इज nth. Now what can be the nth data point? Depending upon your data, you can have 100 data points, you can have 100 rows, you can have 1000 rows, you can have 1 million rows. यही करते रहोगे क्या? Fair? So we are not bothered about that, वो तो मशीन करके देता है। But I hope you got the mathematics behind. ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पर, जा रहा है सब? एक दूसरा प्रॉब्लम आता है एसएसआर के साथ। आई एम मेकिंग एन स्टेटमेंट दैट एसएसआर इज not standard. Now this is one problem. Problem in the sense, problem in the sense, standard कैसे नहीं है? Suppose there are some data points और उनसे एक डिस्क्रीट लाइन जा रही है जिसका एसएसआर सबसे कम, और ये डेटा पॉइंट्स हैं 10। ठीक है, तो माना ये 10 कितने भी ज्यादा स्कैटर्ड क्यों ना हो लाइन से बहुत दूर दूर है, लेकिन टोटल ही 10-15 पॉइंट है, तो इनका एसएसआर मैक्सिमम होगा तो कितना होगा? होगा तो चलो जितना भी। नाउ देयर इज अनदर सिनेरियो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स, thousands and thousands of data points,
millions of data points, and then there is a line fitting in. लाइन बहुत अच्छा फिट कर, बहुत कम एरर किया, बहुत कम एरर किया, लेकिन डेटा पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं, डेटा पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा। व्हाट विल हैपन कि हर एक डेटा पॉइंट की एरर ऐड करते करते हर एक डेटा पॉइंट से छोटी एरर ऐड करते करते इट बिकम्स अ बिग एरर। गेटिंग द आइडिया? So eventually what will happen, this SSR will look way greater than this SSR. इन SSR को अगर कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा दिखाई देगा, डिस्पाइट दैट कि लाइन आपकी बहुत अच्छी फिट कर रही थी, लेकिन डेटा पॉइंट्स इतने सारे थे। I hope it is you are getting it. MCQ stuff for you people guys. MCQ stuff. There is a data set. The best fit line shows SSR of 100. There is another data set. Best fit line showed SSR of 1000. Which is fitting better? Which is fitting better? There are two different data sets. SSR की बात कर रहा हूँ, अभी तो बात खत्म हुई है। इसका SSR देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन लाइन अच्छा फिट नहीं हुआ है। लाइन कौन सा अच्छा फिट हुआ है? लाइन अभी भी यही अच्छा फिट था। इसका SSR बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि डेटा पॉइंट्स बहुत सारे हैं। Yes, your question, you should counter question this. What is the amount of data? Please tell us. तब बताऊंगा, ये बताओगी। ठीक है, I missed that. To calculate beta derivative frequency. Is it so, Ajinkya? Ajinkya, maybe give me some time. I'm not very sure. I will get back to you on this. I may be wrong, but I will get back to you. Thanks for surprising me. Okay, okay. But for now, you can stick to it. Anyway, Ajinkya, you cannot do that manually. So manually तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. So let's stick to the flow for now. So the problem, what happened with SSR? SSR is not a standard. Another problem, SSR will be having a unit. SSR का कुछ यूनिट होगा, होगा क्या नहीं यार? अगर मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअल सेल्स माइनस प्रेडिक्टेड सेल्स, अब सेल्स उसका स्क्वायर किया और बहुत सारों का स्क्वायर किया और ऐड कर लिया। तो अगर सेल्स रुपीज में थी तो ये रुपीज स्क्वायर में आ रहा होगा। If sales was in USD, it would be in USD square. ऐसा कुछ यूनिट आ रहा होगा, and depending upon the unit, it will keep changing. For the same data, if I have this data, जो डेटा हमने देखा था अभी, कौन सा डेटा? ये वाला डेटा। If these figures are in Indian rupees, तो SSR कुछ आ रहा होगा Indian rupees में. But if I change these figures into USD, I take the conversion rate of today and convert these figures into USD, तो SSR कुछ और चेंज हो जाएगा. Again same problem. Somebody is telling me SSR is 100 or SSR is 1000. Which is better? I don't know. I need to know the unit. So getting the problem with SSR, so we do something else. We let's standardize this SSR. And where do we get with this? Let's see. Okay.
was budget and sales and वही जो भी किया था हमने, वही जो किया था तो स्कैटर प्लॉट ही बनाया था ना. Bring it again. This was the scatter plot and we were trying to fit a best fit line. SSR doesn't change any. Now think about it. This was my best fit line. This was my best possible prediction. I want to standardize this. What can I do next? So this is my best possible prediction. Tell me one thing. What can be my worst possible prediction? There's the best fit line. If I get this, this is my best possible prediction with the least errors. What can be my worst prediction? सबसे घटिया अंदाजा क्या लगेगा? मुझे नहीं आती मैथ्स, मुझे नहीं आता एल्गोरिथम, मुझे नहीं आती मशीन लर्निंग, और पाइथन कुछ नहीं पता. थिंक अबाउट इट. वही जो हम जनरल बातचीत में करते हैं. नहीं यार, जीरो थोड़ी बोलोगे. प्रैक्टिकली सोचो. नहीं, वर्स्ट डजंट मीन कि यू विल नेसेसरीली मेक इट रॉन्ग. नॉट दैट काइंड ऑफ वर्स्ट. इसका मतलब ये नहीं कि हम बजट भी नहीं लगाते और हम सेल्स भी बंद कर सकते हैं. एग्जैक्टली दैट. फाइनली यू आर कमिंग अप विद समथिंग. व्हाट अबाउट अदर्स? यू आर गेटिंग दिस. यार जनरल बातचीत में हम क्या करते हैं कि पिछले एक साल से ये सब चला रहा है तो ऑन एंड एवरेज शायद यही हो जाएगा इस महीने. पिछले साल का एवरेज से 15 था तो हाँ ठीक है 15 ही हो जाएगा प्लस माइनस थोड़ा बहुत इस साल, इस महीने में. और क्या बोलो. अगर सबसे घटिया ही अंदाजा लगाना है, एस्टिमेट तो लगाना है, बट प्रैक्टिकली इतना तो लगाओगे. जीरो तो नहीं लगाओगे. ये थोड़ी कहोगे कि सेल्स इन बंद कर दी तुमने, होगी नहीं अगले महीने से. So my best fit line or my best possible prediction. Mean or average, that is my worst possible prediction. तो वही कर लेते हैं. देखते हैं मीन वैल्यू क्या है इसकी. हाँ जी, हमारा हिस्टोरिक ट्रेंड क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग मी दैट 15.56 एवरेज से हमने सेल्स किया है, समटाइम्स अबव समटाइम्स बिलो. तो हमने क्या बोला? 15.5. हाँ जी, कैसे जाएगी ये लाइन? y इज इक्वल टू, ज्योमेट्री पे डालना चाह रहा हूँ मैं इसको, 15.56. कैसे बनेगी ये लाइन? आई थिंक फ्लैट हॉरिजॉन्टल. 15, मैं एग्जैक्ट 15 पे बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत ऊपर चली जाएगी. यस और नो? फ्लैट हॉरिजॉन्टल, y इज ऑलवेज 15.56. यही तो बना रहे हो. वेल, थैंक यू निकिता. वैसे ये डिजिटल पेन ने जीना आराम कर रखा है मेरा. बहुत प्रॉमिस यकीन मानना मेरी ड्राइंग ठीक ठाक है. ये डिजिटल पेन दुखी कर देता है. ओके, अच्छी बात है. देखें, हमने जो वर्स्ट पॉसिबल प्रिडिक्शन किया है, सबसे घटिया प्रिडिक्शन हमने क्या किया है? मीन वैल्यू. तो इस केस में एरर कितनी होगी मुझसे? और फिर देख लेते हैं एरर कितनी होती है. एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड. एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड. वही एरर 1 और उसका स्क्वायर प्लस एरर 2 और उसका स्क्वायर प्लस एरर 3 एंड सो ऑन. वही जो सम ऑफ स्क्वायर किया था. दिस टाइम वी कॉल इट TSS और SST. इट इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ स्क्वायर.
टोटल पॉसिबल एरर और उससे हम कर रहे हैं। हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरा वर्स्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन है, इससे ज़्यादा एरर हो ही नहीं सकती। हाँ, इससे घटिया तो और क्या बताऊँगा, राइट। तो ये सारे एरर टर्म्स निकाले, अगेन इनका स्क्वायर किया और फिर इनका टोटल किया। So that is something which I am calling SST, total sum of square. ठीक है जी, तो वो कैसा दिखेगा आपको? अगेन showing you the illustration, see to this one. अभी वो ब्लैक लाइन पे ध्यान मत देना, ब्लैक लाइन बिकॉज वो मेरा एक्चुअल पॉसिबल मॉडल था, ये तो मेरी टेस्ट फिट लाइन थी, बीटा नॉट प्लस बीटा वन है। अब मैं मीन वैल्यू से देख रहा हूँ, तो मीन वैल्यू से एरर कितने कितने हो गए, इतने 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 इतने। उसी को हमने बोला TSS या SST, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो वो क्या बन गया, पहले पॉइंट से देखा y1 माइनस वाई बार स्क्वायर कर लिया, फिर y2 माइनस वाई बार उसका स्क्वायर एंड अप टू yn माइनस वाई बार उसका स्क्वायर। ठीक है, जनरल टर्म्स में कुछ ऐसा बोल दिया। ये भी समझ आया कि SSR निकाला, SSR को पता चला स्टैंडर्ड नहीं है। अभी हमने देखा कि वर्स्ट पॉसिबल मॉडल क्या हो सकता है, उससे हमने बोला कि TSS कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड RSS and TSS, we come to a term called R squared, which is of this. क्या बोला हमने, R squared is equal to 1 minus RSS divided by TSS. Right? Now think about it. RSS is divided by total sum of square, yani units cancel. So now R squared is a unitary value. That's for one. Yes, ठीक बात है। Second thing, this is a ratio. RSS divided by TSS, this is a ratio. And 1 minus ratio क्या होता है? 1 minus ratio क्या होगा? It will always vary between 0 and 1. Yes or no? So now, irrespective of number of data points, मेरे डेटा में कितने भी डेटा पॉइंट्स क्यों ना हो, this R squared will be between 0 and 1. And think about it. My intention was to minimize RSS. 1 minus something minimum. Can I say that it should be close to 1? I want to maximize R squared, make it reach the value of 1. That's my intention here. Guys, speakers, thinking in. Amit is okay. Ajinkya is okay. What about others? Need to divide RSS by TSS. How would you measure the fit? I mean, I need something to measure the fit. That was RSS. RSS has units
one problem. Second, RSS can be 1000, RSS can be 1 million, RSS can be 100. I don't have something to standardize that. So I divide it by TSS. Now think about it. I'm making a statement that it is always 0 and 1. What if RSS is greater than TSS? So R squared की value क्या होगी? Can you think of it? Can RSS be greater than TSS? अगर RSS और TSS RSS is greater than TSS, तो R squared negative हो जाएगा. But is it possible? Yes, it won't be possible. यार at maximum क्या होगा कि तुम्हारी best fit line जो है वो तुम्हारी सबसे घटिया लाइन भी है. In that case they are equal. R squared is 0. इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना. ये तो हम पहले ही सोच चुके हैं. यार मीन से घटिया अंदाजा क्या लगाओगे? और अगर सारे अंदाजे इससे घटिया ही हैं तो फिर तो मीन ही सबसे बेस्ट है. RSS वही हो गया. Getting the idea people? अरे आ रहा है. पटक तो नहीं जाएगा ना आपको? हो जाता है बिल्कुल. क्या पटक दिया? Okay, three options. Either drop me a question or at least drop me one response. B, C, I. Boring, confusing, interesting. Come on then. You are 25 people here. Drop me a B here. And yes, please be honest with me, Auntie. Go ahead. Okay. अरे डेटा साइंटिस्ट हैं ये लोग. तुमने समझ के रखा है मुझे. एम आई नहीं हूँ मैं. ऐसे ही नहीं बनते. On a serious note, guys, nobody promised it would be easy. Okay? It will take practice, it will take hard work, it will take brain. But yes, at the same time, it's not impossible. There are people just like you and me. In fact, if it comes to various aspects, maybe better than me. I can understand. This is your first step into predictive modeling, and I initially said that also that I can spend, I can spend double the time here, but it would help you throughout your R and Python module altogether. This is what it is. Get this right. I'm not going any further. Let's take a tour back. I think that is fair. Let's walk through once again, and let's try to find out, at least let's look at where you are confused. Fair? Okay, very well. Get up, get up from your wherever you are sitting. Walk for a minute, grab some water, and come back.
Okay, maybe I should also grab a coffee. Okay, let's connect in 2 minutes. It is not a break, by the way. It is just to, stretch, just time to stretch. Okay, so seeing you on 10:20. Be there. Well, let's give it a try again. Uh, Rochelle, yes, Rochelle, I would like R squared to be as much as possible. Yes, meanwhile, everybody, please leave everything else and drop a present. Just once, but do that. Please, don't be lazy. Don't skip this part. Well, let's get get back get back to the root where this story started. What we were trying to do, just like you tried to do in your cast price data. What were you trying to do there? Those who have made submission. You had a target variable that was cast price in that case, and depending on various other predictors, you were trying to there were predictor one, two, and three, and then what not. You were trying to do what? You were trying to see the relation of this target variable with this predictors. Yes or no? That was the idea. Now you saw the relation that okay, this target variable changes with this predictor p. How nice it would be if you can find out that target variable is equal to maybe whatever predictor you have, this predictor plus some constant minus another constant and maybe plus this predictor's square or something. Getting the idea? We're trying to establish a mathematical formula that in terms of predictors can we calculate this target based on the historical data I do have. Think about it. If I can establish such relation, I can predict it next month. I will know the predictor. In the future, I will know the predictor. For car price, suppose you find out there is a very strong relationship of car price with say engine size, and okay, relation is there. But if you can establish the relation also, that if I tweak out the engine size this much, and by this formula I can calculate the car price also. How fantastic! Isn't that the prediction? वही तो prediction है. Yes or no? वही पूछ रहे थे. वही पूछा था कुछ ऐसा. तो हमने सोचा था कि चलो ऐसा कुछ कोशिश करते हैं. लेट्स सी आउट. तो एक दूसरे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर रहे थे. एक कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट बना रही है. वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, and then they are making some sales also. So now after a certain number of months, this becomes my historic data. This has been the history. You remember descriptive analytics? We described something from this data. Now we are moving into predictive part. Description में हमने देखा we can see that there is a very nice linear trend. हमारा जैसे जैसे बजट बढ़ता है सेल्स भी more or less increase ही हो रहा है. Now I want to establish a relationship. Think about it. Can I establish for this point that 10 is and into this formula in this formula a function of this 127. Maybe you can do something. Maybe you can do something for this particular value. But what about next? Then what about next? Then what about next? तो हमने क्या देखा हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ठीक है कर सकते हैं बट फॉर अ जनरल टर्म फॉर एंटायर डेटा सेट वी कैन नॉट डू दैट. We cannot go point by point. Yes or no? We cannot fit each and every data point into one formula. वो तो नहीं हो पाएगा.
आई होप यहाँ तक क्लियर, किसी को इसमें यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कंफ्यूजन है. So we thought of कि let's not fit each and every data point, let's fit the trend overall. कि overall trend क्या रहा है, let's not fit each and every data point. अगर fit नहीं भी हुआ तो error करेंगे, ठीक है कर लेंगे, थोड़ा बहुत error मंजूर है, but at least मेरा function constant हो जाएगा. I will have a general function. So rather than going to polynomials and sine wave, cos wave, logarithmic, exponential, we settled with a straight line. अब simple है, y is equal to mx plus c. स्ट्रेट लाइन तो यही होती है. सारे डेटा पॉइंट फिट नहीं होंगे, हाँ वो तो नहीं होंगे, वो तो हम पहले मान के चलते थे. जो फिट नहीं होंगे इसका मतलब वो मेरी लाइन का एरर होगा, रेसिड्यू छोड़ दे मेरे लाइन में. तो दीज आर रेसिडुअल एरर्स. सो फार सो गुड. अगला क्वेश्चन आता है कि लाइन तो बहुत सारी जाएंगी. अगर मैं इसी ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सोचूं, इस ट्रेंड को, यही वाले ट्रेंड, तो एक लाइन तो ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये भी जा रही है. बेस्ट फिट कैसे मानो, कैसे डिसाइड करेंगे बेस्ट फिट है? उसका क्राइटेरिया हमने क्या सोचा, दैट क्राइटेरिया फॉर दैट वुड बी, मैंने अपने मशीन को बोला कि मशीन क्या देखना है आपको, चेक दिस आउट दैट दिस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स. आप लाइन बना के देखो, देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइन. So what you to compare is, draw a line, take sum of square of residues, then draw another line and draw all the all the possible lines, and find out which line which has least SSR. Sum of square of errors should be least. Now, please keep telling me that every 2-3 minutes you are supposed to respond now. So far so good. यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं. ओके, बढ़िया. अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम आती है. थिंक अबाउट इट. दिस इज अ डेटा ऑफ 17 मंथ्स. ये कंपनी अपना डेटा 17 मंथ्स का देख रही थी. बेस्ट फिट लाइन ये है, मान लेते हैं फिलहाल दिस इज द बेस्ट फिट लाइन. तो कुछ एसएसआर होगा इसका, होगा कुछ तो होगा. मानो 10 था या मानो 100 था. नाउ एट द सेम टाइम यही कंपनी, this time the data is of say 170 months. They have ample data in a second scenario. This is some other geography. वहाँ पर भी इनके पास ऐसा डेटा है, बट दैट डेटा इज वेरी रिच. तो वहाँ पर भी उन्होंने डेटा ऐसे ही प्लॉट किया, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए. यहाँ पर तो 17 थे, वहाँ पर 170 पॉइंट्स हो गए. एंड नाउ दे आर फिटिंग अ बेस्ट फिट लाइन. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, थिंक अबाउट इट. अब यहाँ पर डेटा पॉइंट इतने ज्यादा हैं कि ये एसएसआर ज्यादा ही दिखेगा. ये लाइन कितनी भी अच्छी बेस्ट फिट क्यों ना हुई हो, तो मे बी यू विल सी एसएसआर इज 1000 है, or maybe 500 है. Now if I ask you that okay, is it so that this line is fitting better and this is not? No, this cannot be the yardstick. गलत बात कर रहे हैं आप. डेटा पॉइंट्स में डिफरेंस है, अमाउंट ऑफ डेटा इज वेरी डिफरेंट है. तो द प्रॉब्लम इज एसएसआर देख करके मैं सीधे सीधे नहीं बता सकता हूँ. एसएसआर इज नॉट समथिंग विच इज स्टैंडर्ड, बट दैट इज माई प्रॉब्लम. आई वॉन्ट समथिंग स्टैंडर्ड. आई वॉन्ट वन yardstick कि डेटा सेट चाहे ये था या वो था. My dataset may have 100 values, my dataset may have 1 million values. I want something standard. So that's where came the concept of R square.
हमने क्या बोला? मेरे बेस्ट पॉसिबल मॉडल का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, वो तो ये था। और मेरा सबसे घटिया मॉडल, वो ये था। मेरे सबसे अच्छे मॉडल की स्क्वायर एरर वो इतनी थी, मेरे सबसे घटिया मॉडल की स्क्वायर एरर वो इतनी थी। Think about it. What will I want? I will want this term to be minimum, maximum, what? Infinite, zero, what? Yes, getting the idea. I will want it to be as low as possible. Zero हो जाए तो best case scenario. Perfect. इसको मैंने दूसरी तरह से लिखा। मैं कह रहा हूँ 1 - करते हैं, तो अब मैं इस टर्म को क्या चाहूंगा? इस वाली टर्म, दिस इज अ रेशो, तो रहेगा तो 1 और 0 के बीच में ही। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम रहना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ 1 - दिस टर्म, जिसे मैं मिनिमम चाह रहा था, तो यानी ये टोटल टर्म क्या बन गई? इन अदर वर्ड कह सकता हूँ आई वॉन्ट दिस टू बी मैक्सिमम। यस और नो? अब बता देना क्वेश्चन है तो। ओके, इसी टर्म को हमने बोला है आर स्क्वायर्ड, एंड आर स्क्वायर्ड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इट वेरीज बिटवीन 0 and 1। जितना 1 के क्लोज होगा, इसका मतलब मेरा लाइन उतना अच्छा फिट हुआ है। जितना 0 के क्लोज होगा, इसका मतलब मेरा लाइन अच्छा फिट नहीं हुआ। हाँ जी। अब जा रहा है कानों में, थोड़ा बहुत बैठ रहा है कानों के बीच में। ना, ना बिल्कुल नहीं रुचि। Accuracy is something else. Oh, I will come to that later. Be careful with these terminology. Interviewer फंसाएगा तुम्हें इसमें। तुमसे बोलेगा आर स्क्वायर इतना है, इसका मतलब मेरी एक्यूरेसी इतनी है? ना, इट डजंट मीन दैट। हाँ, संभल के। मेरे जैसा मिला ना तुम्हें इंटरव्यूअर, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत करा रहे हो तुमसे। अभी ठीक है जी। हाँ अभी, अरे अभी तो बहुत कहानी बाकी है, बट आई थिंक बिकॉज एनी क्वेश्चंस नाउ? हाँ वो बता रहा हूँ अभी, नियर 1 एंड नियर 0 अभी दिखा रहा हूँ। जस्ट इन अ मोमेंट, पहले क्वेश्चन ले लूँ अगर इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन। तुम देख रहे हो मैंने कुछ नया नहीं बताया है, जो सुबह से गा रहा हूँ वही जस्ट दोबारा बात की है उसके बारे में। बट आई कैन सेंस दैट इट हैपेंस, ज्योमेट्री हैज दैट इम्पैक्ट,
ऐसा लगता है कि ये समझ तो आ रहा है, बट समथिंग इज नॉट फिटिंग इन. It feels like the key in the wrong lock. That's how my teacher explained to me geometry when I was a scholar. It feels several times. समझ भी आ रहा है, लेकिन बात नहीं बनती. No, Bhavesh, you don't have to do these calculations. You should know that what is the algorithm behind. You see, when you will be interviewed, uh, see, there are people who are only handy with coding and coding वो सीख जाते हैं कहीं ना कहीं से. But the old school people who are old school, really, you know, who are thorough, they are very interested in knowing that whether you only that okay code तो तुमने कहीं से छाप लिया होगा, whether do you know what this code is doing, what is the calculation behind it. So that you must be able to answer. So it is for that. आपका टेस्ट कैसा होगा? आपका टेस्ट कुछ इस तरह का होगा कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं आते हैं. एमसीक्यू स्टफ फॉर यू पीपल. 4 फिगर बने होंगे ABCD और नीचे 4 स्क्वायर लिखे होंगे. आर स्क्वायर 1 2 3 4. मैच द फॉलोइंग. हो जाएगा? देख के समझ आ रहा है? आर स्क्वायर 1 यानी परफेक्ट फिट. सारे डेटा पॉइंट फिट कर दिए लाइन आपकी. आर स्क्वायर not 1 but okay towards 1. So that means it is not exactly fitting the data points, but it is tightly fitting anyway, making very less errors. Well, R squared something like this. It means okay, there is a trend, but it is very loose. You see that here? There is a trend. So trend line, there will be a trend line, but it is very loosely fit. Make a hell lot of error. Way too much error. And finally, R squared 0 or maybe close to 0. What is happening? Just ignore the line in this figure 4. If you ignore the line, what do you see? The scatter points, this the scatter is all over the place. There is no particular trend. अब तुमने बोल दिया उसे मशीन को कि लाइन फिट करके लाओ, तो बेचारी कोई सी लाइन तो फिट करेगी. अरे कोई लाइन तो ऐसी होगी जो सबसे कम एरर कर रही होगी, मे बी बहुत ज्यादा कर रही होगी, पर कोई तो ऐसी होगी जो सबसे कम करेगी. बट जब वो लाइन फिट हो जाएगी, आर स्क्वायर विल बी वेरी पुअर. एमसीक्यू स्टफ कुछ ऐसा ही होगा. मे बी एनी वर्जन ऑफ दिस. 4 फिगर्स होंगी, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ आर स्क्वायर. 4 फिगर्स होंगी, 4 आर स्क्वायर होंगी. मैच द फॉलोइंग. ठीक है जी, हो पाएगा ये. एवरीबडी. ठीक है जी. कौन पूछ रहा था कि आर स्क्वायर 0 हुई तो क्या होगा, 1 हुई तो क्या होगा? समझ आता है कैसे फिट होगी? 0 पे कैसी, टुवर्ड्स 0 हुआ तो कैसी, नियरली 1 हुआ तो कैसी. So okay, we have seen the theory for now. Tomorrow we will try hands on.
Which would be best? Think about it. This is the best case scenario. आपका लाइन सारे डेटा पॉइंट्स को बेस्ट फिट करता आ रहा है हिस्टोरिक डेटा पॉइंट्स को. कल को आपने बोला कि मैं तो बजट इतना रखूंगा, तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि इस लाइन पे ही पड़ेगा, क्योंकि हिस्टोरिक पैटर्न तो यही दिखा रहे हैं. बिल्कुल एक पर्टिकुलर लीनियर ट्रेंड है. आई मीन प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट दिस फिगर इज. So very fantastic scenario. Okay, so very fine guys. Let's call it a day today. Actually, we lost a little bit of time in the session earlier, but the problem is that I cannot make up for that because I have to rush to another session just in 5-10 minutes. So if there's any question, maybe I can take a question for a minute or two. I'll stay. I'm turning off recording. And if there is no other question, as it seems likely, because most of you are thanking me already, enough bored already, is it so? No, no, anyway, very welcome, guys. Bye bye and take care. If there is no further question, you are free to leave.